کچے میں پولیس کا کچا آپریشن ختم، فوج کی پکی کارروائی سے پہلے ہی 40 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ چھوٹو کے سرنڈر اور یرغمال اہلکاروں کو بازیابی کا امکان، پاک آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا، پورا علاقہ سیل، کرفیو نافذ۔ چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی سے راجن پور میں امن کی امید، عوام پاک فوج کی حمایت میں نکل آئے، مٹھائیاں تقسیم۔ کچے میں پولیس آپریشن اور 6 اہلکاروں کی شہادت کا ذمہ دار کون؟ آئی جی، آر پی او یا ڈی پی او؟ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر بنائی گئی ٹھنڈی حکمت عملی کا بھانڈا پھوٹ گیا، لیا میں عوام کا احتجاج۔ فورسز کی ایک اور کامیابی، نوشکی کے قریب کالعدم تنظیم کے کیمپ سے ہتھیار اور 28 کلو بارود برآمد۔ وزیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں افغان خفیہ ایجنسی را کے ساتھ مل کر ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ پاناما لیکس پر حکومت اور اپوزیشن کی سخت بندیاں، شاہ محمود قریشی کی آفتاب شیرپا اور راجہ ناصر عباس سے مشاورت، عبد القادر بلوچ کی فاروق ستار اور پرویز رشید کی محمود اچکزئی سے ملاقات۔ پاناما لیکس پر اسپین کے وزیر نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم صورتحال کا ادراک کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان کا سوال، لندن میں انٹرنیشنل آڈیٹر سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی کا پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی پر زور، فورنسک آڈٹ کا بھی مطالبہ، بلاول بھٹو کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت۔ وزیر اعظم نواز شریف لندن کے اسپتال میں طبی معائنے کے بعد گھر واپس، ڈاکٹرز نے پیر کو دوبارہ چیک اپ کا مشورہ دے دیا۔ ایم کیو ایم کے آنگن میں مزید 2 پتنگیں آ گئی، معروف ڈائریکٹر حیدر امام رضوی اور ریٹائرڈ ایڈیشنل سیشن جج کرم چند متحدہ میں شامل۔ را سے تعلقات کے الزامات انتہائی سنگین، متحدہ پر پابندی لگائیں یا کلین چٹ دیں، مصطفیٰ کمال کا حکومت سے مطالبہ۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما حیدرآباد پہنچ گئے۔ سانحہ بلدیہ کیس میں اہم پیش رفت، فیکٹری کو آگ لگانے والا زبیر چریا سعودیہ سے گرفتار، رینجرز نے 90 دن کے لیے تحویل میں لے لیا۔ کس کے کہنے پر چائنا کٹنگ کی؟ زمینوں پر قبضوں میں کون ملوث ہے؟ رینجرز کی پیپلز پارٹی کے سابق رکن اسمبلی قادر پٹیل سے تفتیش۔ لاہور کے شیرانوالہ گیٹ میں مکان گرنے سے جاں بحق 5 افراد کی تدفین، شہر کی 430 مخدوش عمارتوں میں رہائش پذیر ہزاروں افراد کی زندگیوں کو خطرہ۔ انضمام الحق کو چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان، چیئرمین پی سی بی سے ملاقات، سابق کپتان نے آمادگی ظاہر کر دی۔ اور ایان علی اڑنے چلی، ماڈل گرل نے دبئی روانگی کی تیاری کر لی، رات 10 بجے کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں سلمان حسن، میں ہوں سمینہ پاشا، اور اس بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہیں سلمان حیدر بھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ اور بریک کے بعد کچے میں پولیس کی کچی۔ پولیس کی ہوئی کچی تو پھر فوج نے کارروائی کی پکی۔ راجن پور آپریشن سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ 18ویں دن پہلی بڑی کامیابی حاصل ہو گئی، چھوٹو گینگ کے 40 ڈاکوؤں نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ غلام رسول اور چھوٹو کے بھی ہتھیار ڈالنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اب پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، پورا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ کرفیو بھی یہاں پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو 18ویں دن پہلی بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے، فوج کے سامنے ایک نہ چلی، چھوٹو گینگ کے 40 ڈاکوؤں نے فوج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔
ऑपरेशन 18वां रोज 7 अजला से 2500 पुलिस एहलकार आए, लेकिन कर कुछ भी न पाए। पुलिस नाकाम हुई तो फौज को बुलाया गया। जवान कच्चे में पहुंचे, पोजीशन संभालते ही पहली और बड़ी कामयाबी भी मिल गई। फौजी जवान हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्ते से कच्चे में पहुंचे। 27 पुलिस चौकियों का कंट्रोल भी संभाल लिया। कच्चे के इलाके में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। फौजी जवानों को गनशिप हेलीकॉप्टरों की मदद भी हासिल है। उधर रेंजर्स ने भी थाना शाहबाली का कंट्रोल संभाल रखा है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी की गई है। पाक फौज के सामने छोटू आज वाकई छोटा लगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अब अमन आएगा, खुशहाली लाएगा। पाक फौज की आमद पर इलाके के अवाम झूम उठे। फौज के हक में नारे भी लगाए गए और मिठाइयां भी तकसीम की गई। फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। छोटू गैंग के खिलाफ कामयाबी ने लोगों के दिल जीत लिए। दुनिया न्यूज ने छोटू गैंग के कारिंदों के हथियार डालने की खबर दी तो लोग खुशी से झूम उठे। कोई मिठाइयां बांटता रहा, कोई झूमता नाचता रहा। बड़े तो बड़े, बच्चों ने भी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर जवानों को खिराजे तहसीन पेश किया। छोटू गैंग के खिलाफ कामयाबी के बाद लोग इलाके में अमन और खुशहाली के लिए भी पुरुमीद हैं। पाक आर्मी के आने से हम बहुत खुश हैं। जो हमारी सारी बच्चों के आले औलाद की हमारी जान छूट गई है इन डाकुओं से, इन दहशतगर्दों से। जवान पहले जो शहीद थे उन्हें को खराज तहसीन अवाम पेश करेंगे पियो, क्योंकि पाक आर्मी की वजह कर सारे गरीबों के हाल अच्छा थी। हमें बहुत खुशी हो गई, हमारे बच्चे भी, हमारा मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह रोशन और चमकदार होगा। पाक फौज जिंदाबाद। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में इलाके के अफराद ने पुलिस की नाकामी पर तनकीद भी की। कच्चे के इलाके में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपडेट्स लेते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे हयात खावर से। हयात, बताया जा रहा है कि फौज के कंट्रोल में है सारा इलाका, कर्फ्यू कब तक नाफिज रहेगा? जी देखें, कर्फ्यू का जो ऐलान हुआ है वो तो शाम 6 बजे, 6:30 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। और पाक फौज के जो दस्ते हैं वो उस जजीरे के इर्द गिर्द हैं, वो जजीरे का मुकम्मल कंट्रोल संभाला हुआ है और मोर्चा बंद हैं। और उसके अलावा जो छोटू गैंग है उनके जो लोग हैं, जो उनके डाकू हैं, बाकी साथी हैं, वो अभी सिलेंडर नहीं हुए। 40 जो डाकू हैं वो तो सिलेंडर हो चुके हैं हमारे जराये के मुताबिक। जो मजीद हैं उनको सिलेंडर होने में शायद कुछ लम्हे लगे, तो जब ये सिलेंडर हो जाएंगे तो शायद हमारी आर्मी के वो भी सरेंडर कर देंगे। शुक्रिया आपका हयात खावर। और छोटू गैंग के हाथों यरगमाल बने लिया के सब इंस्पेक्टर असद के अहले खाना गम से निढाल वापसी की राह देख रहे हैं। यरगमाल एलीट फोर्स के 5 यरगमाल एहलकारों के लवाहिकीन भी सड़कों पर निकल आए। हाथों में तस्बीह, आंखों में आंसू, लबों पर दुआएं। छोटू गैंग के हाथों यरगमाल सब इंस्पेक्टर असद के बूढ़े वालदैन बेटे की वापसी की राह तक रहे हैं। मेरी हुकूमत को अपील है कि मेरे पुत्र को बायाब सही सलामत भेजन। मेरे मासूम में बच्चे इन पे न तो सरपरस्त न तो वाले दे पिया। सारे बच्चों को बायाब करा, मैंने इज्जत आबरू ना गलत पॉलिसी ना दिए, सजा बच्चे भुगत देना। एक तरफ तड़पती ममता लखते जिगर की सलामती के लिए दुआ गो है, तो दूसरी जानिब नन्ही ज़हरा बाबा से मिलने को बेताब है। बाबा चूचू भाई क्या हुआ?
3 रोज से यरगमाल लिया के 5 एलीट फोर्स एहलकारों के लवाहिकीन का सब्र भी जवाब दे गया। सड़कों पर एहतजाज करते मुजाहिरीन ने ऑपरेशन रोक कर मुज़ाकरात का मुतालिबा किया। हमारे 3 दिन में घर से ना कोई किसी ने रोटी खाई है, ना पानी पिया है। हमारा भाई मुसीबत में, उनको बाजियाब कराया जाए। तमाम दोस्त ने दुआ के अपील है और हुकूमत से अपील है कि हमारे भाई को बाजियाब कराया जाए। 3 दिन से वो लोग वहाँ पे हैं, ना उनके खाने पीने का कोई पता है, ना किसी चीज का। बस गवर्नमेंट से यही है कि हम लोगों पे एहसान करे, हमारे भाइयों को हिफाजत वापस ले आए। मुजाहिरीन ने मुल्तान मियाँ वाली रोड ब्लॉक करने की धमकी भी दे दी। कहा जा रहा है कि शहीदों के वर्सा को 50-50 लाख मिलेंगे, उनके बच्चों को नौकरी भी देंगे। लेकिन हमारा सवाल अपनी जगह है कि कच्चे में पंजाब पुलिस की नाकामी की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? आईजी पंजाब, आरपीओ, डीजी खानिया, डीपीओ राजनपुर? पुलिस एहलकारों की जाने गंवाने की जिम्मेदारी किसी ना किसी पर तो है, लेकिन ये जिम्मेदारी लेगा कौन? लिया में शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी शुरू कर दिया है। कच्चे में एक और नाकाम ऑपरेशन का जिम्मेदार कौन? 6 एहलकारों की शहादत किसकी गर्दन पर? क्या आईजी पंजाब जिम्मेदार हैं, या आरपीओ डेरा गाजी खान, या फिर डीपीओ राजनपुर? इनसे मिलिए। ये हैं आरपीओ डेरा गाजी खान रहमतुल्लाह। इलाके में कानून शिकनों की सरकोबी इनका फर्ज है। और ये है डीपीओ राजनपुर मुबश्शिर मेकर। कच्चे का इलाका इन्हीं की हुदूद में आता है, लेकिन छोटू गैंग ताकतवर होता रहा, जुर्म बढ़ता गया और दोनों अफसरान लंबी तान कर सोए रहे। जब सर पर आन पड़ी तो दूसरे अजला की पुलिस बुला ली और शुरू कर दिया एक और नाकाम ऑपरेशन। इनसे भी मिलिए। ये हैं आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा। कच्चे के इलाके में कच्चा पक्का ऑपरेशन इन्हीं की मंजूरी से शुरू हुआ। जब ऑपरेशन की नाकिस मंसूबाबंदी पर सवाल उठने लगे तो आईजी साहब खुद मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठंड कमरों में बनाई गई ठंडी हिकमत अमली 6 एहलकारों की जान ले गई। नाकाम ऑपरेशन के मंसूबा साज और इन जानों के ज़िया के जिम्मेदार कौन पकड़ेगा? शुहदा के वरसा ये सवाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने राजनपुर ऑपरेशन में शहीद एहलकारों के वरसा के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी और शहीद एहलकार के खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ऐवान वजीर आला में इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना था कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शहीद एहलकारों के वरसा को 50-50 लाख रुपए इमदाद, मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए, जबकि शहीद के घर के एक फर्द को फौरी तौर पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहीद के घर की कफालत और बच्चों की तालीम और तरबियत के तमाम अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का सेंट्रल लंदन के अस्पताल में दोबारा चेकअप किया गया। पीर को फिर अस्पताल बुला लिया गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ एक बार फिर सेंट्रल लंदन के अस्पताल पहुंचे, जहां उनका दोबारा चेकअप किया गया। वजीर आजम की डॉक्टर से मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। डॉक्टर्स ने वजीर आजम को गुज़श्ता रोज के लिए गए टेस्ट की रिपोर्ट से भी आगाह किया। ये हुकूमत भी हरकत में आ ही गई। पनामा लीक्स पर हमनवा तलाश करने निकल पड़ी। वफाकी वज़रा ने एमक्यूएम और पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के कायदीन से मुलाकातें की और मशवरे मांगे। इस्लामाबाद से आबिद मलिक की रिपोर्ट। पनामा लीक्स की गूंज, सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। हुकूमत की अपोजिशन और इत्तेहादियों से मुलाकातें, एमक्यूएम से मशवरे मांगे, इमरान खान से माफी का मुतालबा कर दिया। एमक्यूएम से मदद मांगने वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच फारूक सत्तार के पास जा पहुंचे। फारूक सत्तार ने मशवरा दिया कि पनामा लीक्स की गैर जानबदाराना तहकीकात की निगरानी के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए।
वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने अपने इत्तेहादी महमूद खान अचकजई से मुलाकात की। इस मौके पर मुशाहिदुल्लाह खान एक बार फिर इमरान खान और एतजाज अहसन पर बरस पड़े। इमरान खान को उन जजों से जिनके खिलाफ उन्होंने गंदे ज़बान इस्तेमाल की गंदी और उनको मतऊन किया और अब तक वो यही काम कर रहे हैं, उन्हें उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि वज़ीर आज़म आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के लिए नहीं, सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन गए हैं। कैमरा टीम के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन अपनी सफबंदियां कर रही है। पनामा लीक्स पर तहरीक इंसाफ के राबितों में तेजी आ गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने आफ्ताब शेरपाव को राजी भी कर लिया। शाह महमूद अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी मिले। पनामा लीक्स का हंगामा, तहरीक इंसाफ के अपोजिशन से राब्ते तेज। शाह महमूद कुरैशी का आइन के अंदर रहकर तहरीक चलाने का इंदिया। पीपल्स पार्टी पीर से करेगी मुलाकातों का आगाज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि आइन के मुआवरा कोई मुतालबा नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी को डीरेल करना हमारा ऑब्जेक्टिव न था, न है, न होगा, और समझते हैं कि पार्लियामेंट का फोरम अफजल फोरम है और उस फोरम को हर सूरत इस्तेमाल होना चाहिए। आफ्ताब शेरपाव ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बाइख्तियार कमीशन बनाया जाए। इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के तहत एक कमीशन बनाई जाए, साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हों। शाह महमूद कुरैशी ने मजलिस वादुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की और पनामा लीक्स पर इन्हें तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से आगाह किया। कैमरामैन आबिद अली के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को यौम तासीस मनाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 24 अप्रैल को धरना है, न जलसा। उन्होंने कहा उम्मीद है इजाजत मिल जाएगी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद मलिक। इस्लामाबाद इंतजामिया के इनकार के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का F9 पार्क का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 24 अप्रैल को जलसा नहीं, जश्न मना रहे हैं। 24 तारीख को हमारा धरना नहीं है, ये जलसा नहीं है, ये एक पुरअमन इज्तिमा है। इमरान खान साहब का लंदन से मैसेज आया है कि हम हर कीमत पर 24 तारीख को अपनी सालगिरह हम F9 पार्क में मनाएंगे। इससे कबल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ को आगाह किया था कि दफा 144 के बाद शहर में जलसे जुलूस पर पाबंदी है। जलसे से अवाम की आजादाना नक्लो हरकत में खलल पड़ेगा, इसलिए जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथी रिपोर्टर कमरुल मुनव्वर और कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बलूचिस्तान से खबर दें, जहाँ दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। अफसी ने अफगानिस्तान से लाए जाने वाले असले की एक बड़ी खेप पकड़ ली। कोयटा से इब्रार अहमद। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर सरफराज बुख्ती ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों की मदद के लिए भारी तादाद में असला और गोला बारूद अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान लाया जा रहा था। यह इत्तला जैसे ही मिली तो खुफिया इदारों और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने कार्रवाई की और अफगान आर्मी के यूनिफॉर्म समेत असला और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया। बॉर्डर के पास हमारा उनके साथ चेज शुरू हुआ और 35 किलोमीटर चेज के बाद एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उस एक्सचेंज ऑफ फायर में कुछ लोग उनके जख्मी भी हुए, जो ब्लड स्पॉट हमें नजर आए, लेकिन रात की तारीकी का फायदा उठा के वो भाग गए। सरफराज बुख्ती का कहना था कि बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के हालात खराब करने में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS शामिल है। NDS और रॉ के साथ मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, बलूचिस्तान के हालात खराब करना चाहती है, हमारे मासूम लोगों के कत्ल गारत में शामिल हो रही है और होती आई है। तो इस तरह की चीजें टॉलरेबल नहीं है। वजीर दाखिला ने फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी को बेहद सराहा। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा।